नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी रेड्डी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुम्मा के ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि शीलूबे क्रॉस ब्रिज के संबंध में मांग की। कर्नाटक के वन जीव एवं पर्यावरण तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने तालुका पंचायत बीदर के संयुक्त तत्वाधान में अक्का कैफे का उद्घाटन किया। पीएम सब्सिडी से किसानों को राहत, धारवाड़ के लिए मुख्यमंत्री का विशेष पैकेज। गोवा में आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज। मिशन 2026 में फतह का बीजेपी का पूरा प्लान तैयार, अमित शाह बंगाल से करेंगे शुरुआत। भारतीय ट्रक और बसों में जल्द अनिवार्य होगा एडीएएस, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की बड़ी पहल। अब समाचार विस्तार से। गुम्मा के ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि दिलीप पिता बापशेट्टी, बक्कप्पा पिता गुरुप्पा कोंडा, नागेश पाटिल पिता मंडलिका पाटिल सभी गुम्मा बीदर ने एकत्रित होकर 1999 में उक्त गुम्मा गांव में शीलूबे ब्रिज का निर्माण किया और उप सभापति डेविड सीमैन के कार्यकाल में उक्त शीलूबे का उद्घाटन किया। तब से उक्त पुल ऐसा ही है, लेकिन अब हमने उक्त शीलूबे की मरम्मत कर दी है। लेकिन ऊपर दिखाए गए 3 लोगों ने एकत्रित होकर उक्त शीलूबे को हटाने के लिए लिंगायत जाति के लोगों के हस्ताक्षर के साथ ग्राम पंचायत को एक याचिका सौंपी है। जब हमने दोबारा ग्राम पंचायत को फोन किया तो वहां 2 लोग थे, पीकेपीएस प्रेसिडेंट श्री शिव कुमार पाटिल और विजय कुमार के पिता शरणप्पा बापशेट्टी। बताए गए दूसरे लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा कि आप कुछ कर सकते हैं, यह आप पर है, हम नहीं आएंगे। फिर से रोजाना अखबार में बार बार आ रहा है उस शीलूबे को हटाओ। बताए गए 3 लोग हमारी कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, वे जाति का अपमान कर रहे हैं और उस शीलूबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। ದಿನಾಂಕ 2/12/2025 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರು ಗುಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಲ್ಬೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಆ ಶಿಲ್ಬೆಯನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹತ್ತಲತ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾಲಿ ನೀರು ಊರು ಗಲೀಜು ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲತ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಊರಾಗೂ ಕೇಳಿದೆವು. ಯಾರು ಕಂಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆದರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು 3 ಜನರು ಊರಾಗ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಕದಲತ್ತಾರ, ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೀರಿ, ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಕಿರಿ, ಪಿಡಿಯೋಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಊರಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಯೋ 2 ಸಲ ಗುಮ್ಮೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಂಚಾಯತರು, ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿಡಿಯೋ ಗುಮ್ಮೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಊರಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಬಂದು ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರು, ಬರ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಮನೆ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ಭಾನಮತಿಲಿಂದ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಸುಗಳು ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾರಳ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಿರು. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮತ್ತು ಬೆಳಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತು, ಧೊಡಲ್ ಅಂತ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾರಳ ಬೀಳ್ತು, ಭಾನಮತಿ ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ. ಪೇಪರ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೆಸರಿಲ್ದೇನೆ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾವ. ಇದು ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪದ. ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಲೀಡರೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಾವೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಟ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಮ್ಮ ಊರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅದು ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ವಿ ಏನಂದರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದೆವು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೀಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಕೀಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು SB ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
कर्नाटक के वन जीव एवं पर्यावरण तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि अक्का कैफे महिला सशक्तिकरण का मार्ग बनेगा। वे सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय परिसर में संजीवनी कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन संगठन, कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका विभाग, जिला पंचायत तथा तालुका पंचायत बीदर के संयुक्त तत्वाधान में अक्का कैफे के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अक्का कैफे जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, महिला सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। कैफे को 12 लाख रुपए की सरकारी सहायता और महिला स्वयं सहायता समूहों के निवेश से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कैफे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने कहा कि अक्का कैफे महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर जीवन बनाने में मदद करेगी। महिलाओं का शुरू से ही शोषण होता रहा है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर पर थी, लेकिन आज महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान और उपलब्धियां अपार है। उनकी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत बिना किसी बिचौलिए के सीधे महिलाओं के अकाउंट में 2000 रुपए जमा किए जा रहे हैं। हर साल इस योजना के लिए 1.26 करोड़ महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और शक्ति योजना के तहत महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं और टिकट पर पैसे बचा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 600 करोड़ की टिकट मुफ्त दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैफे में अच्छी क्वालिटी और स्वादिष्ट खाना और साफ सफाई होनी चाहिए। बीदर दक्षिण के एमएलए शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि अक्का कैफे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए है। कैफे में खास और अलग अलग तरह के खाने का इंतजाम होना चाहिए। इस कैफे में यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता है। इस मौके पर मंत्री ने बगदलन गणेश सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को कैफे का लाइसेंस दिया और कैफे में लंच किया। इस मौके पर कर्नाटक फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरमैन माला नारायण राव, महानगर पालिका के कमिश्नर मुकुल जैन, केंद्र सरकार की स्टेट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर शिवैया स्वामी, बीदर तालुका पंचायत के ईओ मानिकराव पाटिल, दूसरे अधिकारी, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और दूसरे लोग मौजूद रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಿರೀಶ್ ಬಡೋಲೆ ಅವರೇ, ಮುಕುಲ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಯಶಾದ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರವರು, ಅಬ್ಬೆ ಅವರು, ಅಂಬಾದಾಸ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ಏನಿದೆ, ಅಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಗ್ದಲ್ನ ಗಣೇಶ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಸುಮಾರು 100 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಾಸಕನಾದ್ಮೇಲೆ 2008ರಲ್ಲಿ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 10,000 ಸಂಘಗಳು, 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ ಬೆಳದಾಳೆ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮೇಡಮ್, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಕುಲ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ದಿಶಾ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಶಿವಯ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪೋವರ್ಟಿ ಅಲಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಒಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ SHGಗಳು ಹಾಗೂ GPLF ಮುಖಾಂತರ SHGಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,738 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
97,058 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಎಚ್ಜಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಬಿಕೆಗಳು 185 ಎಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, 555 LCRPಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, CIF ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫಂಡ್ SHG GPLF ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು SHG ಕೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗಲ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವರು ಶ್ರಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಫೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. फसल मिल नहीं रही, जो मिल रही है उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा। खासकर फसल के मौसम में खाद के लिए मारामारी रहती है और फसल उगने के बाद दलालों से परेशानी होती है। इन सब मुश्किलों के बीच सीएम सिद्धरामैया ने धारवाड़ के किसानों को खुशखबरी दी है। जी हां, यह वही स्पेशल पैकेज है उन्होंने दिया है। अगस्त महीने में धारवाड़ जिले के खेती वाले इलाकों में भारी बारिश से हुए फसल नुकसान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी के लिए एक स्पेशल पैकेज के तहत धारवाड़ जिले को 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 63.77 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा ग्रांट बांटने के लिए कदम उठाए हैं और किसानों के लिए अकाउंट में इनपुट सब्सिडी का पैसा जारी कर दिया। ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिव्या प्रभु ने कहा। श्री राघवेंद्र स्वामी मठ ने अफ्रीका में माइल्स लीडरशिप यूनिवर्सिटी विवि के मौजूदा आचार्य श्री सबुदेंद्र तीर्थ स्वामी जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के रवि आचार्य और डीन डॉक्टर KT राजेंद्र कुमार ने उन्हें यह अवार्ड दिया और सम्मानित किया। यह प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय के श्री योगेंद्र सभा मंडप में हुआ। श्री पद्मगल को दी गई यह तीसरी ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री है। पहली डिग्री 2020 में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने दी थी और दूसरी 2022 में योग संस्कृत यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा ने दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र ने सुर बदला और बीजेपी के असंतुष्टों के दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष के नेता चलवडी नारायण स्वामी पर तंज कसा। मंगलवार को कोलेगल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी काम से जाना चाहिए था, हम क्यों कहें कि मत जाओ। अगर हाईकमान तय करता है तो कोई भी नीचे आ सकता है, मैं चाहूं तो नीचे आ सकता हूं। विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर वे क्या करेंगे, उन्हें क्यों चुना जा रहा है? नहीं, हाईकमान पहचानेगा कि लोगों का समर्थन किसे है और उसे सत्ता देगा। उन्होंने कहा कि विजेंद्र के अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने विरोध करने वालों पर यह भी तंज कसा है कि लोमड़ी की चीख पहाड़ तक नहीं पहुंचेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गोवा की राजनीति में लंबे समय से एक कमी महसूस होती रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हर घर तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को छोटी सी बीमारी के लिए भी शहर के बड़े अस्पताल तक जाना पड़ता है। टाइम, पैसा, ऊपर से महंगी दवाएं आम लोगों के लिए इलाज एक तनाव बन चुका है। फिर आम आदमी पार्टी ने एक अलग और जमीन से जुड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इलाज जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता को अस्पताल तक नहीं। इसी सोच के साथ गोवा में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप लगाए गए, जहां इलाज सीधे लोगों तक पहुंचा। आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 800 से ज्यादा हेल्थ कैंप आयोजित किए हुए हैं और 20,000 से अधिक मरीजों का फ्री या बेहद सस्ते में इलाज हुआ है। किसी बुजुर्ग को दरवाजे के पास दवा मिली, किसी बच्चे की जांच तुरंत हो गई, किसी महिला का ब्लड प्रेशर बिना शुल्क मापा गया। आम आदमी पार्टी ने प्रचार नहीं काम किया है और यह काम अब हर मोहल्ले और गांव में महसूस किया जा सकता है। लोग बताते हैं कि हेल्थ कैंप कब होते हैं, कौन सा इलाज मिलता है, कौन सा दवा फ्री में उपलब्ध है। जो चीज पहले कल्पना जैसी थी, आज वह हकीकत है। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के मतदान दिवस पर शहर में सुबह से ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ, वैसे ही नागरिक बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर बुजुर्ग, महिला, युवा लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। कई स्थानों पर सुबह से ही भीड़ लगातार बढ़ती गई। लोग शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दोपहर 1:30 बजे तक कुल 36.13 मतदान दर्ज की गई प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया और उसके बाद मतदान की गति और तेज हो गई। ताजा जानकारी के अनुसार 4 बजे तक मतदान 56.56% तक पहुंच गया। शहर के लोग ने बताया कि इस बार विकास, साफ सफाई, पानी, सड़कें और अच्छी सुविधाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मतदान कर रहा है। बुजुर्ग मतदाता भी हिम्मत के साथ बूथ पर पहुंचे और महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी बहुत मजबूती रही। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए गए। इस कारण मतदान पूरे दिन शांतिपूर्ण और सही तरीके से चलता रहा। लोगों ने कहा कि वोट डालकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका एक वोट शहर का भविष्य तय करेगा। शाम के समय भी कई केंद्रों पर भीड़ बनी रही, तो उम्मीद है कि अंतिम प्रतिशत और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर उदगीर में मतदान का दिन पूरी तरह उत्साह, जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण माहौल के साथ बीता। मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। हाँ मंजूर भाई, आप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, आज आपने मतदान किया है, तो आप आज की मतगणना, आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के भी लोग हैं आपके साथ, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? थोड़ा सा बोलिए। कांग्रेस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पब्लिक की तरफ से। कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, नगर अध्यक्ष और हमारे बहुमतों से चुन के आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। मैं कांग्रेस का शहर अध्यक्ष होकर मैं मेरी बात रख रहा हूँ। शहर में बहुत अच्छा वातावरण है कांग्रेस पार्टी का और बहुमत से चुन के आएंगे हमारे नगर अध्यक्ष डॉक्टर अंजुम खातून। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। अमित शाह इस महीने के आखिरी में पश्चिम बंगाल से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने तक वह हर महीने कम से कम 2 दिन पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिताएंगे। इन लगातार होने वाले दौरों का मकसद चुनावी माहौल बनाना, संगठन को सक्रिय करना और बूथ स्तर तक ऊर्जा भरना है। अमित शाह अपने इन दौरे के दौरान जोन वाइज कार्यकर्ताओं के साथ गठन बैठक करेंगे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की अलग बैठकें होंगी। संगठनात्मक समीक्षा और रणनीतिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही बड़े स्तर पर रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम भी प्लान किए जा रहे हैं, ताकि बीजेपी का संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। अमित शाह इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सहयोगी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि सीट बंटवारे, साझा अभियान और संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जारी मतदाता सूची के प्रवेश गहन पुनरीक्षण एसआईआर में लगे एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ की मंगलवार सुबह अचानक मौत हो गई। यह घटना हाथरस जिले के मृतक बीएलओ के परिवार ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक 40 साल के बीएलओ कमलकांत शर्मा की मंगलवार सुबह अचानक मौत हो गई। वो हाथरस की तहसील सिकंदरा राव के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के निवासी थे। बताया जा रहा है कि सुबह छत से सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्हें अचानक चक्कर आया और वे नीचे गिर पड़े। इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल पास के अस्पताल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। कमलकांत शर्मा पुत्र देवेंद्र कुमार शर्मा गांव नावली लालापुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे। वर्तमान में वे बीएलओ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। बीएलओ की पत्नी नीलम शर्मा ने बताया कि उनके पति पर काम का अत्यधिक दबाव था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लगातार फोन आ रहे थे। नीलम शर्मा के मुताबिक मैंने कई बार समझाया कि
काम का इतना प्रेशर मत लो, लेकिन वे मानते नहीं थे। सुबह अचानक चक्कर आकर गिर पड़े और फिर वापस नहीं लौटे। शर्मा के परिवार पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत में भारी वाहन जिनमें ट्रक और बसें शामिल हैं अब प्रीमियम कारों जैसी एडवांस्ड सुरक्षा तकनीक से लैस होने जा रहे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मार्च से 21 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया, अगले 2 से 3 वर्षों में देश के सभी M2, M3, M2 और M3 श्रेणी के वाहनों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS अनिवार्य होंगे। इनमें की मिनी बसों से लेकर बड़े कोच और मध्यम से भारी मालवाहक शामिल हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। गणपति अपार्टमेंट के पास यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लगी। बस में न सिर्फ यात्री थे बल्कि अवैध रूप से वाणिज्यिक सामान भी भरा हुआ था। आग इतनी तेजी थी कि पूरी तरह से बस जलकर खाक हो गई। यह घटना राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास से कुछ ही दूरी पर हुई है। फिलहाल घायलों या मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई घटनाएं इसी वजह से सामने आई। यात्री बसों में अवैध माल भरना, ओवरलोडिंग और निगरानी में भारी लापरवाही। दिल्ली से खरीदारी करने के बाद लोग बड़ी मात्रा में सामान लेकर अपने शहरों और कस्बों में लौटते हैं। इसके लिए निजी सवारी बसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बड़ी बड़ी डिग्गियां बनाई जाती हैं। इन डिग्गियों में यात्रियों का सामान कम और वाणिज्यिक माल अधिक भरा होता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुम्मा के ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि शिलूबे क्रॉस ब्रिज के संबंध में मांग की। कर्नाटक के वन जीव एवं पर्यावरण तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने तालुका पंचायत बीदर के संयुक्त तत्वाधान में अक्का कैफे का उद्घाटन किया। पीएम सब्सिडी से किसानों को राहत, धारवाड़ के लिए मुख्यमंत्री का विशेष पैकेज। गोवा में आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज। मिशन 2026 में फतह का बीजेपी का पूरा प्लान तैयार, अमित शाह बंगाल से करेंगे शुरुआत। भारतीय ट्रक और बसों में जल्द अनिवार्य होगा ADAS, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की बड़ी पहल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।